corona and due to all this, you people could not come to the school, no problem. I hope it was nice for you that you enjoyed the Independence Day program from home only. And as you know that I finished all the exercises related to poem 5, right? The lazy frog. Already we have finished all the exercises, the rhyming words and the fill in the gaps and everything we have finished. Now, as all of you know, today I am supposed to start lesson number 5. This is the last lesson of half yearly because in your half yearly you will have the syllabus like this: 5 poems and 5 lessons. Yes, Anshika. 5 poems and 5 lessons. That's yellow. Put your mic off. Put your mic off. Switch your mic off. As soon as you join the class, please check your mics. Anshika Rathod. Switch your mic off. भरत गुजर मैं जो बोल रही हूँ वो सुन भरत, माइक बंद रखेगा और चुपचाप सुनेगा। Just give me 1 minute. The mouse is coming down. Okay. Okay. So, as all of you know, I have already told you that poem 5 already we have finished all the exercises and all the things. Now today I am going to start the lesson 5. I am supposed to start lesson 5. So the title of the lesson I have already written on the board. Lesson 5, Rip Van Winkle. This is the name of one person only. Rip Van Winkle. They are not 3 persons. It is 1 person. ठीक है? जैसे कोई बोले आशी कुमारी वर्मा, तो आशी कुमारी वर्मा तीन नाम नहीं है. आशी कुमारी वर्मा is complete one name of a girl. Okay. Ratnanjali Sharma Bijolia, because at my father's house I used to put the surname Sharma. After marriage I became Bijolia. So I can say Ratnanjali Sharma Bijolia. So it doesn't mean that I have 3 names. This is one full name, my name. Okay. Got it? So this Rip Van Winkle is a name of one person. That's a very interesting lesson it is. This lesson is very interesting. I hope you will enjoy this. But with Romana Khan, very good. Romana is present today. Because many students I call. And one more thing you tell me, please, 5th B. Anybody lives near Adarsh house? Anybody knows Adarsh house? Anybody lives near his house? Jitendra or Rudransh? Anyone? He is not attending the classes. So please inform him. Please tell him to attend the classes regularly. Please tell him to attend the classes regularly. He is not attending the class, then we will call the parents. हमें घर पे स्कूल पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा स्कूल में. Ritika, sit properly. Okay. So this lesson is about a fellow. Fellow means a human being, a man named Rip Van Winkle. In this lesson, you will come to know about his good qualities as well as bad qualities. Okay, this lesson is in a story form. This is a story about Rip Van Winkle. So you will come to know about Rip, what kind of a fellow he was, what did he do, what he doesn't do, what he didn't do, everything you will come to know. So as I just told you one line, quality. First of all, we should know the meaning of quality. So what do you mean by quality? Taranveer. मैम जैसे हमारे अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटी होती है? क्या क्वालिटी? इसमें मीनिंग क्लियर हो गया? जैसे मैं अच्छा लिखता हूँ. So
This is your good quality or bad quality? Good. Very good. Now tell me one bad quality about Taranveer. कभी कभी मैं अपनी मम्मी से बिना पूछे साइकिल चलाने चल जाता हूँ. वेरी गुड. हम हर इंसान को अपनी क्वालिटीज के अच्छी क्वालिटी के साथ साथ बुरी क्वालिटीज भी पता होनी चाहिए. बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना अभी आपको 10 तारीफ करने को बोलूँ तो आप फटाफट कर लोगे. मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ. लेकिन जब बोलूंगी क्या नहीं करते हो, क्या खराब करते हो वो बताओ, तो आपको आप तरनवीर को सोचना पड़ा कि मैं अपनी बैड क्वालिटी क्या बताऊं, जबकि बैड क्वालिटी ज्यादा होंगी. क्योंकि अब बच्चे हो आप छोटे, तो बैड क्वालिटी हमारे अंदर बहुत है, लेकिन हम उसको बोलना नहीं चाहते हैं. हम अपने अच्छी क्वालिटी बताते हैं. तो बैड क्वालिटीज को, ऐसा नहीं कि बैड क्वालिटी होना बुरी बात है, सब में होती है, ह्यूमन बीइंग्स है. बट वी शुड रेक्टिफाई आवर बैड क्वालिटीज. धीरे धीरे करके हमें अपनी बैड क्वालिटीज को खत्म करना चाहिए, ताकि फाइनली हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएं. ओके, सो एज यू नो वी विल राइट नाउ आई आस्क Taranveer about the good qualities and bad qualities as well. Good qualities and bad qualities. Okay, we will just discuss this thing today in the class. We'll come to know about the good qualities and about the bad qualities. Mostly our focus will be on good qualities only. Okay, so Ishmita, Yes, ma'am. what are the good qualities of a student? मैम, हमें मैम की बात माननी चाहिए. Try to speak in English, that we should listen to our teacher and and students in the discipline. okay, discipline. Okay, Prajwal, I never demand anything from my parents. I did not ask you about your parents. I asked what are the qualities of a good student? Punctuality, Very good. ma'am, discipline, Good. respectful, Shabash. Punctuality, discipline, respectful, obedient. Is it there? Obedient. Obedience should be there. A student should be obedient. If you don't listen to your teacher, you can't get success in your life. You should always listen to your teachers and elders. Okay. So these were some qualities we discussed about a good student, that what qualities a good student should have. He should be punctual. He should be regular to the class. Some of your friends are attending class for 1 day, then they are not attending for 4 days. Then they attend for 2 days. Then again they are gayab for 4 days. They are just disappearing from the class. है ना? Gayab means disappearing. So this is not good. उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है. Previously also I have told that मेरा कोई नुकसान नहीं है. If you are not attending classes, नुकसान आपका है बेटा. हाफ ईयरली एग्जाम है नेक्स्ट मंथ. आपको आगे 6th में जाओगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, अभी अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो. Okay, so these some of the good qualities we discuss about a student. Now let me come to another point. What are the good qualities of a neighbor? Deshna. मैम,
to help anyone in need. मैम जैसे अगर हमें कुछ चाहिए तो नेबर मना ना करे और हमें दे दे। हमें दे दे। और व्हाट अबाउट अस, हम ना दे उनको। और हम भी वैसे ही उनको दें। ओके, और in another word we can call this quality helping. Am I right, Deshna? A neighbor should be helping. Am I right, Deshna? Okay, so Deshna has given one word for a good neighbor. A good neighbor should be helping. Vedant? Ma'am, a good neighbor should shareful. Should? Shareful. Shareful? ये कौन सा वर्ड है? मैम जो शेयरिंग करता हो हर चीज हमसे। He should be sharing. He or she or they should be sharing. And ma'am, if अपनी चीजों को वो शेयर करे, राइट। and ma'am, if we are in the trouble, he help us. वो तो देशना ने बोल दिया ना कि ट्रबल में हो या हमें कोई जरूरत पड़े तो वो हेल्प करे हर फॉर्म में। आपके घर में मम्मी की तबीयत खराब हो गई, पापा नहीं है घर पे, है ना, पापा प्लांट चले गए या कहीं कोटा गए हुए हैं, तो फटाफट नेबर की जिम्मेदारी कि भाई वो आपने उनको बोला तो वो फटाफट अपनी गाड़ी में डाल के मम्मी को हॉस्पिटल ले जाए, आपकी हेल्प करे, पापा को फोन करे। तो वो सब हेल्प में सब कुछ आ गया। आपके घर में शक्कर खत्म हो गई है, चीनी खत्म हो गई है और अब मेहमान आ गए हैं, तो आपको इतनी शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप जाके अपने नेबर से 1 कटोरी चीनी ले आओ। भाई भले वापस दे देंगे, ठीक है, लेकिन वो ऐसे कहना नहीं हमारे पास नहीं है जाओ, तो ऐसे नेबर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा और सम मोर क्वालिटीज आर देयर ऑफ गुड नेबर्स। आशी? A good quality of a good neighbor is helping, caring, sharing, and also kind with each others. लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला? Kind. बेटा माइक को थोड़ा पास लेके बोलिए, योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी। आशी? Yes, ma'am. A good neighbor of good qualities is sharing, helping, caring, and also kind with each others. Kind. काइंड, या दे शुड बी काइंड टू ईच अदर। उनको एक दूसरे पे दया आनी चाहिए। ओके, ठीक है। क्रिस्टीना? Good behavior. गुड बिहेवियर, वेरी गुड। हर्षिता? मैम फ्रेंडली एंड प्रेजेंटली। फ्रेंडली एंड हिमांक? माइक ऑफ करो, स्विच ऑन, स्विच योर माइक ऑफ। ओके, सो सम क्वालिटीज माय स्टूडेंट्स गिव मी, उसमें से कुछ है एक अच्छे नेबर की क्वालिटीज: कैरिंग, हेल्पिंग, गुड बिहेवियर, स्पेंड टाइम विथ ईच अदर। ओके, दे शुड बी काइंड टू ईच अदर, दे शुड हेल्प ईच अदर, दे शुड। और कई लोग की आदत होती है जो मैंने देखी है, एक नेबर ने अपने घर के बाहर का झाड़ू लगाया और दूसरे नेबर के घर के बाहर फेंक दिया। इज इट ए गुड क्वालिटी? ये एक अच्छे नेबर की क्वालिटी है? आपने अपना घर तो चमका लिया बढ़िया, लेकिन अपने घर का कचरा ले जाके अपने नेबर के घर के सामने फेंक दिया। या आप ऊपर के फ्लोर पे रहते हो, आपने अपना झाड़ू लगा लिया और सारा कचरा नीचे वालों के सामने फेंक दिया, तो ये करेक्ट नहीं है। ये सारे मैनर्स है, एटिकेट्स हैं, वो हमें आने चाहिए। आप कॉलोनी में रहते हो तो कॉलोनी में रहने के एटिकेट्स आने चाहिए। आपके पापा 4 बजे ड्यूटी से आए सुबह, अब 4 बजे आप अदरक वाली कूट के चाय बना रहे हो, पापा के लिए तो धाड़ 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 आप अदरक कूट रहे हो। अरे भाई आपके पापा 4 बजे आए, दूसरों के घर में तो लोग सो रहे हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें होती है ये। तो क्या करना है, मम्मी को पापा के आने से पहले ही अदरक कूट के रख देना है, या उसको घिस दो घिसनी में, ऐसे ऐसे करके अदरक ऐसे भी हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अभी हम लोग अपार्टमेंट वाले उसमें रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अब किसी के हस्बैंड शिफ्ट ड्यूटी में, वो रात को 12-1 बजे शिफ्ट ड्यूटी करके आए, अब वो रात को खटर पटर कर रही है ऊपर। अरे भैया मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, मेरे को तो सोना है। Isn't it? And you are getting my point? समझ में आ रहा है आपको?
अब मुझे तो जल्दी उठना है सुबह 5:30 बजे। अब मेरे पड़ोसी रात को 1:30-2 बजे खटर पटर कर रहे हैं ऊपर, तो मैं पहले, मेरी तो नींद खराब हो गई, और नींद खराब होने के बाद मुझे वापस नींद भी नहीं आ रही है। सो दीज आर सम स्मॉल थिंग्स फॉर बिकमिंग अ गुड नेबर। एक अच्छा नेबर बनने का ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरों की प्रॉब्लम भी समझे, और अपने नेबर्स को आपकी वजह से कोई तकलीफ ना हो। अब सामने वाले नेबर के घर में कोई बीमार पड़ा है, बेचारा बिस्तर पे है, उनको कोरोना हो गया, कुछ भी हो गया, उनकी तबीयत खराब चल रही है, और आपके घर में आपने बर्थडे पार्टी, आपने जोर जोर से म्यूजिक चला दिया। अरे भैया हमारे घर में तो पार्टी, हम तो चलाएंगे। अरे भाई आप तो चलाओगे, है ना, आपके घर में पार्टी भी है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे नेबर होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप थोड़ी कम वॉल्यूम कर दो, ताकि जो आपका नेबर बीमार है उनको डिस्टर्ब ना हो। Isn't it? Am I correct or wrong? I am wrong. Am I wrong? Or correct? Correct. Correct. Okay. So ये छोटी छोटी बातें, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी के नेबर हो। अगर इस तरह की गलतियां आप में से कोई भी करता है तो वो आज से, अभी से, इसी वक्त से बंद कर दीजिएगा। अपने घर की सफाई करके दूसरे घर के सामने कचरा फेंक दिया, कभी भी खटर पटर कर रहे हैं, दाम दुड़ूम कर रहे हैं, नीचे वालों को, अब नीचे वाले अंकल ड्यूटी जाके आए बेचारे, और आपके घर में आप म्यूजिक चला के जोर जोर शोर शराबा कर रहे हो, दरवाजा जोर से पीटते हो, झाड़ फूड़, बालकनी का दरवाजा ऐसे खोल खोल के बिंग बम बुम बैंग बैंग, तो वो पूरा ना डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो बेचारे नीचे अंकल शिफ्ट में ड्यूटी करके आए, वो सो ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अच्छे नेबर की क्वालिटीज ये होती है कि आप हमेशा उनके बारे में ध्यान दो। आपको ध्यान रहे कि भैया इनके घर में अभी अंकल ड्यूटी करके आए, खटर पटर नहीं होनी चाहिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें ढंग से रहना है। अगर हमारा पड़ोसी प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद करनी है। अगर उनके घर में कोई बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बर्थडे मत मनाओ, आप मनाओ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखो कि हमें उनका भी ध्यान रखना है, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना है। तो हमने अभी गुड स्टूडेंट की गुड क्वालिटीज डिस्कस करी, गुड नेबर की गुड क्वालिटीज डिस्कस करी। नाउ I want to ask you some of the good qualities of a responsible citizen. आप रावतबाड़ा के नागरिक हो, राजस्थान के नागरिक हो, और फाइनली आप जब अमेरिका जाओगे तो आपको कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो, है ना। वहां अमेरिका जाके ये नहीं बोलोगे मैं तो रावतबाड़ा में रहता हूँ, वहां क्या बोलोगे? Where are you from? I am from India. I am from Hindustan. I am a Hindustani. भारतीय, ठीक है, इंडियन। सो एक अच्छा सिटीजन की क्या क्वालिटीज हैं? अपर्णा। Yes, ma'am. To clean all places. अच्छा, तो झाड़ू लेके निकल जाऊं मैं घर से? अभी जाऊं झाड़ू लेके बाहर सड़क साफ करूं? No, ma'am. कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। फिर कहाँ फेंकूं? घर में इकट्ठा करूं, घर में सड़ने दूं, घर में बहुत सारे डस्टबिन में। हाँ, तो पूरा सेंटेंस बेटा ढंग से बोलिए कि हमें अपने घर का कचरा, वी शुड ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द प्रॉपर प्लेस, यानी कि डस्टबिन में। हमारी कॉलोनी इतनी अच्छे से बनी हुई है, हर कॉलोनी के आपके घर के पीछे आपको पता है टंकी दे रखी है कचरे की, और आजकल तो गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है। तो आप गीला कचरा गीले में फेंक दो, सूखा कचरा सूखे में फेंक दो। 1 मिनट लगता है नीचे जाके कचरा फेंक के आने में, जरूरी नहीं कि मम्मी पापा जाए, आप भी जा सकते हो, ठीक है। फिर हमें अपने देश के ऐसे अपमान नहीं करनी। जैसे आप स्कूल आते हो, अपना कंपास से खोद खोद के डेस्क पे नाम लिख दिया, तो भैया ये क्या आपकी प्रॉपर्टी है? आपने पैसे दिए इस बेंच के, ये हमारे स्कूल की प्रॉपर्टी है, और स्कूल किस में आता है? देश में। तो हमें उस प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप मंदिर गए, मंदिर में आपने कहीं भी पूजा चढ़ाई, माला चढ़ाई, और वो जो उसका पेपर निकला ऐसे खचपुच करके ऐसे फेंक दिया साइड में, हो गई तुम्हारी पूजा बराबर। भगवान भी माफ नहीं करेगा तुम्हें ऐसी पूजा करने के लिए। तो ऐसी पूजा नहीं करनी है जिसमें भगवान भी आपको उल्टा ब्लेसिंग देने की जगह श्राप दे देगा, बोले भैया कचरा करता है तो आना ही मत मेरे मंदिर अगली बार। तो ऐसे नहीं करना है। हमें जहां भी जाना है वहां अच्छे से साफ सुथरा रखना है। आपने कचरा किया, आप साथ में, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, मैं 2-3 दिन पहले कोटा गई थी, हमेशा अक्सर जाती रहती हूँ, मेरी खरीदारी ज्यादातर कोटा से ही होती है। जैसे मैंने नाश्ता लिया, तो जैसे वो नाश्ता खाया, वो लोग पेपर मग्स देते ना आजकल, पेपर प्लेट और पेपर वो वाले, है ना। कुछ खाया, कचौरी खाया, कुछ साबूदाना खाया, लस्सी पिया, तो वो सब प्लास्टिक का। तो मैंने एक पॉलीथीन रख लिया। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप में से कई बच्चे करते भी होंगे, कईयों के पेरेंट्स दे आर वेल एजुकेटेड, उनको सब पता है क्या करना है। तो पॉलीथीन रखती हूँ मैं गाड़ी में, सारा कचरा मैं दिन भर जो खाती रही, जो भी करती रही, बिस्किट का उसका रैपर है पैकेट का, है ना, आपने नमकीन खाया,
मैंने पेपर नैपकिन से अपने हाथ साफ किए, तो वो सारा कचरा मैं उस पॉली बैग में इकट्ठा करती रही। फाइनली मुझे एक जगह डस्टबिन नजर आया कोटा में, तो मैंने वो पॉलीथीन का नॉट लगा के उसको बांध के एंड आई थ्रू इट इन द डस्टबिन। तो मैं इससे कोई बहुत बड़ी नागरिक नहीं हो गई, है ना, कोई बहुत बड़ी तुरमखानी हो गई, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने अपना फर्ज अदा किया, है ना, मैंने अपना पूरा फर्ज अदा किया कि मैं एक अच्छी सिटीजन हूँ, जितना मैं अपना पार्ट कर पा रही हूँ। इधर अभी कोरोना चल रहा है, मैंने देखा कोटा गई, लोग थूक रहे हैं इधर उधर सड़क पे, आथू, अरे बाबा रे, पहले तो थूकना ही नहीं है, और कोरोना में तो बिल्कुल भी नहीं थूकना है। एंड देवर स्पीटिंग लाइक एनीथिंग, थू थू, मतलब गुस्सा तो ऐसा है दो चाटे लगा दूं खींच के, लेकिन मैं चाटे लगा नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं उनकी टीचर थोड़ी हूँ, तुम लोग दिखोगे तुम्हारे लगा भी दूं। अब वो कोटा में लोग घूम रहे हैं और इधर उधर थूक रहे हैं, अरे भैया कोरोना चल रहा है, कम से कम अभी मत थूको इधर उधर, आप वॉशरूम जाओ, वॉश बेसिन पे, टॉयलेट में, उधर ही टॉयलेट यूज करते हैं लोग, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, उसको ऐसे गंदा छोड़ाते हैं, फिर जाके यूं 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 नाक पकड़ के बदबू वो करते हैं। तो पब्लिक टॉयलेट्स में आप जाते हो तो उसमें आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, हाथ धोने। हमारे देश की हालत ये है कि टॉयलेट से भी लोग मग चोरी कर लेते हैं, तो बेचारी गवर्नमेंट मग भी नहीं रखती है, फिर आप भटकते फिरो इधर उधर। तो बहुत सारी चीजें, अभी आप बड़े होगे तो और समझोगे। तो हमें एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी है, हमें ईमानदार बनना पड़ेगा, वी शुड बी ऑनेस्ट। लालच नहीं करना है, मैं ये बोतल घर उठा ले जाऊं, ये मग उठा ले जाऊं, मैं ये कर ले जाऊं, आधा तो इस चक्कर में इंडिया पिछड़ रहा है। तो अच्छा अच्छा सिटीजन होने का, हमें कचरा नहीं फैलाना है, इधर उधर नहीं थूकना है, अपने देश की जो संपत्ति है, मंदिर है, महल है, पैलेसेस है, पब्लिक प्लेसेस है, गार्डन है ना, उनको डैमेज नहीं करना है, वहां से चोरी चकारी नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात मैंने आपको बताई, इधर उधर थूक के गंदा नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी खाया तो वो कचरा फेंक दिया, कार में से फेंक दिया, कभी कभी पहले मैं भी फेंक देती थी, तो वो सब नहीं फेंकना है। तो ये सब थोड़ी, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें जो है हमें क्या करना है, हमें ध्यान में रखनी है, ओके। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग योर अटेंडेंस एंड आई विल लीव द क्लास। ये मैंने आपको इतना आज इसलिए समझाया क्योंकि जो रिप वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 5, उसमें हम लोग मेनली यही देखेंगे, मेनली आपको सारा क्वालिटीज का ही पता चलेगा। आदर्श का अगर किसी को पता है तो प्लीज उसको इन्फॉर्म करो। आदर्श का अगर उसका व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, तो उसको बोलो कि क्लास अटेंड करे, नहीं तो उसके फादर को हम लोग फोन करके स्कूल में बुलाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। टुडे वी केम टू नो अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट, of a neighbor and of a responsible citizen. So see you in the next class tomorrow. Bye for now. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, bye, ma'am. बाय मैम। बाय बाय मैम। अम्मी हो गई। बाय मैम। बाय, मैम। लेफ्ट, भाई लेफ्ट हो जाओ यार, कैसे हो रहा है, मैं लेफ्ट हूँ। बाय बाय। फालतू मत बोलो, रिकॉर्डिंग ऑन है। तुमको कुछ मालूम है सभी को ये क्या हो गया? मैम लेफ्ट होगी, बस यही हुआ है। ओह ठीक है, तो फिर अभी हमें कौन लेफ्ट करेगा? खुद पूछो मैं। हमें मैम हम सबको लेफ्ट करना भूल गए। मैम हम सबको लेफ्ट करना भूल गई। कर दो सब। हट जाओ। कृष्णा
मत बोलो क्या? कृष्णा शायद वो लेफ्ट हो गई। हाँ देखता है क्या? हाय तो कर दो उसको। क्या हो गया? हेलो कानू। हाँ। क्या हुआ? क्या कर रही है? अच्छा लगेगा। लीव कर दे। बंद कर दो। रिकॉर्डिंग ऑन है। हो गया क्या? हाँ? लीव कर दे। ओके। अच्छा लगेगा। रिकॉर्डिंग तो अभी तक स्टार्ट है। हाय तो आपको हाँ हमारा तो इतने दिनों से अभी कैसे भूल गई मैडम? ओके बाय। शाम को मिलते हैं गार्डन में। मम्मा ऋषि को बुलाना। ऋषि को बुलाना। हाँ एक तक पिन करो। एकता कैमरा ऑन है तेरा? अच्छा देखो एका दीदी। अच्छा ये देखो। देखो एका दीदी। अरे अभी कम से कम अभी तो मत कर कुछ और। अच्छा अच्छा। देखना है तेरे घर की आवाज है क्या? कानू। हाँ। आएगा क्या आज? हाँ आ जाऊंगा। क्यों? ठीक और है। ये है ना क्लास के टाइम ना मुझे कानू मत बोल, दक्ष बोल। ये घर क्या? का नाम है क्या? मेरा। एकता कब आएगी? रिकॉर्डिंग ऑन है। यूट्यूब पे जाके देखेंगे। क्या? 2023 को आएगी। अरे माँ। चल बाय। ओके सब लोग लेफ्ट हो जाओ अभी। अभी घर जाके खाना खाओ अभी, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑन है अबे, माइक ओके टाटा बाय बाय। हिमांक तू है क्या? हेलो। कोई है कोई मीटिंग में? हेलो। ओ हिमानी। ओके